एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਮਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਮਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। 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 ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ।
सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देरो दिखान मैं सतगुर देरो दिखान मैं सतगुर देरो दिखान मैं सतगुर देरो दिखान मैं सतगुर अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए अकाल मूरत अजूनी संभो 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 कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए श्री जपजी साहिब जी के अर्थ चल रहे हैं और आज का अक्षर जिसका अर्थ है जिसके अर्थ की सेवा गुरु साहिब जी सर पे हाथ रख के ले वो अक्षर है अजूनी सह भंग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी अलग अक्षर है, सह भंग अलग अक्षर है। अजूनी सह भंग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक गुरु की कृपा से हमने समझा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। असल में तो अकाल मूर्त का कंसेप्ट इतना बड़ा है साथ संगत जी, अगर हो सकता है अगर हम चाहें तो इसे पूरे 40 तक केवल अकाल मूर्त चल सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना बड़ा कंसेप्ट है अकाल मूर्त का।
पर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सह भंग, अजूनी अजूनी, योनियों से रहित, ये हमारा लक्ष्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात कहा करते थे, कहते थे कई माताएं अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आती, वो समझते कि मैं ज्योतिषी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं बच्चे को आगे रख के कहते पूछते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, आगे चलकर मेरा बच्चा क्या बनेगा। तो मस्कीन जी कहते मैं हमेशा कहता हूँ संत बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आखिर में संत बनना ही पड़ेगा, तभी छुटकारा होगा, उसके बिना छुटकारा नहीं है इस देह से, इन योनियों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती, नानक लीन भयो गोविंद से जो पानी संग पानी, तब तक आना जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमने ये समझना हो कि हमारा जन्म मरण कटेगा या नहीं कटेगा, बड़ा सिंपल है, अपने आप को देख लो, अपने आप को समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। अगर तो संतों वाली अवस्था प्राप्त हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा रहा है गुरु, तो पॉसिबल है कि जन्म मरण कट जाए, अजोनी को प्राप्त हो जाए। अजोनी सह भंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मूल मंत्र का गुण है, गुरु नानक का गुण है, परमेश्वर का पार ब्रह्म का एक ओंकार का ये गुण है कि वो अजूनी है, योनियों में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, अकाल मूर्त अजूनी संभव, यहाँ पर जो संभव आया है और जो अजूनी सहभंग है, दोनों का अर्थ भाव अर्थ एक ही है। वो आगे चल के आएगा कि संभव का क्या मतलब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग क्या भाव है इसका, पहले इस कंसेप्ट को ले लें, अजूनी को। गुरु साहब जी ने वाणी में कई जगह पर 84 लाख योनियों की बात की है कि 84 लाख योनियां हैं। इसे वेद शास्त्र स्मृतियां भी कहते हैं, और गुरु साहब जी ने तो मोहर लगा दी। सारे गुरुओं ने जिन्होंने 12 उच्चारण किए हैं, इस बात की प्रौढ़ता की है, इस बात को प्रमाणित किया है। श्रवण कीजिए। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पायो। लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पाया। रे मूड़े तू हो छे रस लपटायो। रे मूड़े तू हो छे रस लपटायो। हो छे रस, काम क्रोध लोभ मोह। एक्चुअली क्रोध रस नहीं है, क्रोध तो मजबूरी में आता है इंसान को। लोभ रस है, वासना काम वासना रस है। अच्छा कहते तू नाम को छोड़कर इसमें व्यस्त है, कैसे तेरा जन्म मरण खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म पाया है। लाख 84 जोनिया भोग कर बाणी कहती है ये जन्म मिला है। एक्चुअली बाणी इसको भी कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट, इसके आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि लाख 84 लाख योनियां भटक कर, कभी पेड़ कभी पक्षी कभी पहाड़, कितनी भी योनियां हैं सब भुगत कर अब तूने जाकर ये योनि पाई है। और इसका काम था एक ही, अवर काज तेरे कितने ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। और तूने नाम को छोड़कर इन रस्सों में अपना जीवन खत्म कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
रे मुड़े तो हो छे रस लपटाए हो। आइए दो पंक्तियां पढ़े। अकाल मूर अजूनी संभाव, अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार को पाना है, सतनाम को हृदय में बसाना है, कर्ता पुरुष को हर एक में देखना है, अनुभव करना है, निर्भव होना है, निर्वैर होना है, अकाल मूर्त को पांचों को हटाकर पीछे दर्शन करने हैं। तो उसके लिए काम एक ही करना पड़ेगा। बार बार जिसकी बात आ रही है, कल अंधकार दिपाई। इस कल युग में एक ही दीपक है नाम का, जो भीतर जगा सकता है, रोशनी दे सकता है अंधेरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही दीपक है जो इस कल युग में जग सकता है, वो है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी भी इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि 1,84 जन्म, 1,84 जो योनियां हैं, तरस रही हैं इस देही के लिए। इस देही को सिमरे देव। देवता अरदास करते हैं कि एक बार फिर से मनुष्य देही मिल जाए, क्योंकि मनुष्य देही बनकर, एक बात समझ लेना, दास ने शायद पहले भी बताई है, बाबा नानक सिंह जी कहते थे नाम जपा केवल इस मनुष्य देही में जा सकता है। देवता जो अमर हो गए हैं उस देही में नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है, देवता है पर नाम नहीं जप सकते। ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ पर जैसी करनी करेंगे वैसा फल मिलता है, जैसा आप चाहोगे। जो देवता है जिस पोजीशन पर पहुंच गए अब उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि नाम जितना जपा उस हिसाब से पोजीशन है। अब उनका मन करता आगे बढ़ने का, तो तरसते हैं, क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो जपते हैं, जो नहीं जपते वो तो पछताएंगे ही, जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने पूछा भाई वो क्यों पछताएंगे? कहने लगे जब कीमत का पता चलेगा ना नाम का, मरने के बाद कीमत का पता चलेगा ना कि नाम जपने की इतनी ज्यादा कीमत है, तब पछताएंगे कि ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने नहीं जपा वो तो 84 लाख जोनियां भुगतेंगे इसलिए पछताएंगे, पर जो जपेंगे वो इसलिए पछताएंगे कि ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी फरमा रहे, श्रवण कीजिए। 1,84 तरस दे, 1,84 तरस दे, 1,84 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। बड़े ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को फिर से। 1,84 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक समझा रहे हैं, 1,84 योनियां तरसती हैं उसके दर्शनों को,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल हम इंसान ही नहीं, सब तरसते हैं उसके दर्शनों को। बाणी कह रही 184 तरस दे, पर जिस मेले सो मिले। जिसे वो मिलाए वही मिल सकता है, दूसरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मिले सो मिलाए, उसकी मर्जी। बाबा नंद सिंह जी ने अक्सर एक बात कहा करते थे, देखिए महापुरुषों की व्यवस्था होती है। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, प्रेम में कहा करते थे, वो कभी शिकायत तो कर ही नहीं सकते गुरु से। प्रेम में कहा करते थे कि मुझे वो कविता याद नहीं है, पर उसका अर्थ ये था कि एक के घर में 6 बच्चे हैं और एक के घर में एक भी नहीं। और वो नहीं चाहता, फिर 7वां भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं भगवान तुझे कौन कहे कि कहाँ जरूरत है, कहाँ भेजो और कहाँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव वो कहते थे कि उसकी मर्जी का ना पता नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार तो किसी का करोड़ों बार जपाओ भी उसे पसंद नहीं आता, और किसी के गुनाह भी उसे पसंद आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को तरस आ गया सज्जन ठग पर, कौड़े राक्षस पर, भूमिज पर। उन्हें जाकर दर्शन दिए, उन्हें तारा भी, संत भी बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी अरदास में पंक्तियां शामिल करते थे कि हे गुरु नानक, जैसे कौड़े राक्षस के पाप नहीं देखे, भूमि में चोर के गुनाह नहीं देखे, हम भी उसी पार्टी के आदमी, उससे भी अधिक पापी हैं। हमारे पास भी आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम वसाए। फिर तत् नाम है, पाया उसने है जिसने अपने हृदय में नाम को बसा लिया। जो श्वासों के साथ जप रहा है, मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है जपने की, उसे आकर मिलेगा जरूर। कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर, पर दास ऐसा लगता है मिलेगा जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब योनियां भुगत कर आए, सब। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, श्रवण कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह बाणी में फरमा रहे हैं, कहते रुख बिरख हम चीने, कहते पशु उपाय, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते रुख बिरख हम चीने। कितनी बार दरख्त बने, कितनी बार पशु पक्षी बने, कितनी बार नाग, कहते नाग कुली में आए। नागों के भी कुलें होती हैं, कितनी कुलों में जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पंख उड़ाए, कितनी बार पक्षी बना, अंत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे। कद की माई बाप कद केरा गिदु थाम माए, अगन बिंब जल पीतर निपजे काहे कम उपाय। पातशाह कहते हैं इतनी जोनियां भुगत कर आया है। ये बार बार जोनियों की बात क्यों आ रही है? क्योंकि आज का अक्षर है अजोनी, जिसे प्राप्त होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सैभंग, अजूनी जो जोनियों से रहते हैं, जो किसी योनियों में नहीं आता, और जिसमें ये गुण प्रकट हो गया योनियों का, अजूनी का, उसका भी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर एक परमात्मा है जो योनियों से रहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, अजूनी। गुरु अर्जन देव जी वाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। तू पार
पार ब्रह्म परमेश्वर जोन न आवही, जोन न आवे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन न आवे, तू हुक्मी साजे शिष्ट साज समावही। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू योनियों से रहते, तू योनियों में नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, तुझे जन्म नहीं लेना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आद रूप अनाद मूरत, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, अजोन पुरख अपार, अजोन पुरख अपार। हे आद रूप, हे अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार। एक एक अक्षर उस एक ओंकार की सिफत है। अजोन है तू, योनियों में नहीं आता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहते हैं, एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात ना जाला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका जन्म ही नहीं, उसकी जात कैसी है? गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं, इस संसार में चाहे कोई भी आया, ये कंसेप्ट बड़ा ही थोड़ा सा डिटेल में समझने लायक है। अजोनी, अकाल मूरत, अजूनी सहभंग। सिद्धों ने गुरु नानक पाशाह से सवाल किया था कि अजूनी के साथ सहभंग क्यों लगाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पाशाह सिद्धों के बीच में जो गोष्ट हुई ना, 10 थोड़ी करके बीच में ले रहा है, पूरी एक साथ नहीं ले रहा। जहां पर जो सवाल है उसका जवाब। पहले अजूनी के बारे में सवाल पूछा, फिर बाद में ये भी पूछा कि अजूनी के साथ सहभंग क्यों लगाया। आइए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। अकाल अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव। कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अंतर्जामी जीवन का दाता, देखत त्रिपत अगाधे। अंतर्जामी जीवन का दाता, देखत त्रिपत अगाधे। अंतर्जामी
देखत तृप्त तृप्त अघाई तृप्त अघाई अंतर्जामी जियन का दाता देखत तृप्त अघाई अंतर्जामी जियन का दाता देखत तृप्त अघाई काल मूरत अजूनी संभाव काल मूरत अजूनी संभाव काल मूरत अजूनी संभाव काल मूरत अजूनी संभाव अकाल मूरत अजूनी संभाव कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए काल मूरत अजूनी संभाव कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से सवाल किया कि अकाल मूरत दिखाई क्यों नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो मूरत है, हस्ती है, उसकी वजूद है, अकाल है, मान लिया आपकी बात, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया कि वो अकाल है, काल से परे है, समय से परे है। पर अगर मूरत उसकी हस्ती है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, सबको दिखाई क्यों नहीं देता है। तब गुरु नानक पातशाह ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर साइंस के आधार पर जवाब दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि हर चीज सृष्टि में किससे बनी है, सबसे छोटी चीज क्या है। तो सिद्धों ने जवाब दिया कि अणु, एटम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने मुस्कुरा के कहा, एटम दिखाई देता है, अणु दिखाई देता है इन आंखों से। वो कहने लगे नहीं। तो कैसे पता अणु है। अणु है जरूर, ये तो मानते हो ना। कहने लगे हाँ, अणुओं से मिलकर ही चीज बनी है, चाहे कुर्सी हो, कैमरा हो, माइक हो, बाजा हो, हम हो, अणुओं का मिलाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे है जरूर उसकी हस्ती, दिखाई नहीं देती। दिखाई के लिए वो आंख चाहिए, श्रद्धा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं कि वो दिखता नहीं, श्रद्धा वालों को दिखता भी है। अगर ऐसा ना होता, बाबा नानक सिंह जी पर तक गुरु नानक पातशाह को भोग ना लगाते, ऐसा ना होता तो ये पंक्ति ना होती, धन्य हर का दर्शन भया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले पर तक गुरसाइया धन्ना वट पागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बड़ी डिटेल में एक बात समझाई अणुओं के बारे में। सिद्धों ने कहा अजूनी है, पर अजूनी तो माया भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया भी योनियों में नहीं आती, माया प्रकट हो चुकी है, वो योनियों में नहीं आती। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हाँ, माया योनियों में नहीं आती, वो अजूनी है, पर इसीलिए हमने अजूनी के साथ सह भंग लगाया है, क्योंकि अजूनी है पर सह भंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है जी। अजूनी सह भंग, अजूनी का मतलब है जोनियों से रहते। सिद्ध पूछ रहे गुरु नानक पातशाह से कि माया भी अजूनी है, वो भी योनियों में नहीं आती, 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता माया को। पर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ समझाया वो अजूनी जरूर है पर सहभंग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग क्या है? सुते प्रकाश, स्वयंभू, अपने आप प्रकाशमान।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जैसे ये लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये चल रहा है, पर इसे चला कौन रही है? लाइट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजली, पावर वहां से आ रही है। अगर लाइट चली जाए तो ये किसी काम के नहीं, खड़े हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि जो माया है वो प्रत्यय प्रकाश है। प्रत्यय प्रकाश जो किसी से ताकत लेकर प्रकाश लेती है, ताकत उसको मिल रही है एक ओंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार है सुते प्रकाश, जो अपने आप प्रकाशमान है। शक्ति अपने आप प्रकाशमान एक ही है, एक ओंकार। उसके बाद जो कुछ भी है योनियों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर माया अजूनी है तो वो भी उसकी कृपा, क्योंकि एक ओंकार उसे शक्ति दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया अपने आप में कुछ नहीं, मायापति कहा जाता है उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे और डिटेल में समझाया। कहने लगे हमने सहभंग इसलिए भी लगाया है क्योंकि सब कुछ अणुओं से बना है और आगे जाके ऐसा जमाना आएगा। गुरु नानक पातशाह ने देखो फ्यूचर का सोचा। दास ने अभी अभी बताया, दास ने अभी बताने की कोशिश की कि दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक ज्ञानी वाले, एक महापुरुषों वाले। यहाँ पर दास दोनों लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी भी इसे समझ जाएं और जो गहरे हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो भी समझ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि आगे चल के संसार ऐसा होने वाला है कि भगवान पर से विश्वास कम होता जाएगा। तब लोग अणुओं को ही भगवान मानने लग जाएंगे कि अणु ही भगवान है, क्योंकि सब कुछ इससे बन रहा है। और ये सच है साथ संगत जी। अगर आप आज स्टडी करेंगे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट नासा के या बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिकन, वो दावा करते हैं कि भगवान है ही नहीं। सब कुछ क्या है? एटम। दो एटम से मिलके ये बना, तीन एटम से मिलके ये बना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसी को लेकर बैठे रहते हैं कि सब कुछ ये भगवान ही ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो एक बात भूल जाते हैं यहाँ पर। गुरु नानक पातशाह ने समझाया यहाँ पर बड़ी डिटेल में। कहने लगे आगे चल के ऐसा समय आ जाएगा कि एटम को ही भगवान मानने लग जाएंगे लोग, पर सहभंग नहीं होगा। वो अजूनी हो सकता है, सहभंग नहीं। एटम अपने आप नहीं बने, बनाने वाला कौन है? अजूनी नहीं है एटम, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि जब सृष्टि बनती है तो एटम इकट्ठे हो जाते हैं और जब सृष्टि खत्म होती है तो एटम्स बिखर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ खत्म हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो हस्तियां बनती हैं, शरीर बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पौधे, जमीन, धरती, आकाश, सब एटम्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए सहभंग लगाया, इसीलिए अजूनी लगाया। अजूनी सहभंग एटम्स हो सकता है कि उससे सब कुछ बने, पर एटम को किसने बनाया? एक ओंकार। एटम स्वतः प्रकाश नहीं है, एटम प्रत्यय प्रकाश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सहभंग। सहभंग अपने आप जो प्रकाशमान होता है, इसलिए केवल एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाई, कल अंधकार दिपाई। काल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाई, कल अंधकार दिपाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो प्रकार के भगत होते हैं, दो प्रकार के संत होते हैं, दो प्रकार के अवतार होते हैं, सब दो प्रकार के होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बड़ी ध्यान से समझना इस बात को जो दास अब कहने जा रहे हैं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं किसी पे किंतु परंतु नहीं कर रहा, किसी का नाम भी नहीं ले रहा, पर जो सच है वो बता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जन्म साखी में भी लिखा हुआ है, जो बाबा नंद सिंह जी की साखी में भी लिखा हुआ है, जो बाबा मारनाथ सिंह जी कहा करते थे, और यही बात गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में भी लिखी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दो प्रकार के हुए हैं सब। एक वो जो संत होकर भी प्रभु को मिल नहीं पाए, रह गए, संत बन गए, अवस्था हासिल कर ली, फिर भी रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवतार भी ऐसे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। अवतार भी ऐसे हुए हैं जो अवतार हो गए, निरंकार ने भेजा धरती पर अपनी शक्तियां देकर लोगों को तारने के लिए, पर वो भी एकमिक नहीं हो पाए। गुरु नानक पातशाह ने ये भेद खोला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्यों नहीं हो पाए? कमाल का पहलू है, बड़े ही कमाल का। चाहे अवतार हो, चाहे भगत हो, चाहे पीर फकीर हो, संत हो, अब सब दो प्रकार के हैं। एक वो जो यहाँ पर आके अपने आप को मिटा देते हैं, ना अपना नाम, ना अपनी हस्ती, ना अपनी होंद, वो चाहते नहीं, वो अलग बात है, प्रभु उनका नाम करे, उनके मन की इच्छा नहीं होती कि उनका नाम हो, उनके मन की इच्छा होती कोई जुड़े तो गुरु से जुड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो यहाँ पर आकर एक ओंकार की पूजा करवाते हैं, उस निरंकार के ज्ञान देते हैं कि एक की पूजा करो, वो एकमिक हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर समझने की बात, हमें ज्ञान केवल इतना लेना है, अजय नाव समुद्र में क्या जाना क्या हो। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजय नाव समुद्र में क्या जाना क्या हो। कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, बाबा नंद सिंह जी ज्ञान दिया करते थे, कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, कितनी भी, कहते थे संगत में खड़े होकर माफी मांग लिया करो, अपने आप को कुछ समझा मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे संगत में खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने गुनाह कबूल कर लेना, गुरु नानक को उसके गुनाह बख्शने ही पड़ते हैं, पर हिम्मत चाहिए, कोई कर नहीं पाता। एक आ गया था कोई विद्वान बाबा नंद सिंह जी के पास आके कहने लगा, कहने का भाव यहाँ पर जो मेन बात है अहंकार। चाहे कोई कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, डर के रहे कि पता नहीं कल क्या हो जाए, गिर सकता है कहीं से भी, कोई किसी भी लेवल से कहाँ भी गिर सकता है, और जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी बड़ी चोट लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को अरदास रोज पातशाह तरस कर, जो भावे सो कम कराई, जो ना भावे सो ना कराई, जिथे भावे तिथे रखे, जिथे ना भावे तिथे ना रखी। और आखिर में एक पंक्ति कहते थे, अपने चरना विच रखी, जिथे मर्जी रखी, रखी चरना दी कोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अगर दुख भी है जीवन में, गुरु के चरणों में बैठे हो, दुख सुख में बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार की बात है, बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना मुझे याद आ गई। बीच में कहीं पर गए हुए थे, संगत बैठी थी, अचानक एक वहां का चौधरी खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा कि मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप, जितने भी दुनिया के गंदे काम होते उसने सारे गिना दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी इतने प्रसन्न हुए उसके ऊपर, इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे तेरे सारे गुनाह माफ, तो तूने संगत में खड़े होकर गुरु नानक की कृपा से ही तेरे माफ हो गए, तूने संगत ने बता दिया खुलकर। पर हमारी इतनी प्रसन्नता है तुझ पर, जा तुझे नाम ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की जोत जगा दी, हृदय में खुश हो गए कि संगत में खड़े होकर अपनी गलती मान ली। बहुत बड़ी बात होती है, गलती मान ले। मानव गलती करके ना माने दानव, और जो गलती ना की हो फिर भी माने महामानव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें अपनी गलतियों को कबूल करने से कौन रोकता है? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार के इतना सूक्ष्म रूप है कि हमें लगता है हम विनम्रता में हैं,
पर भीतर इतना सूक्ष्म रूप है उसका कि पता नहीं लगने देता कि वो भीतर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने तो संगत में खड़े होकर माफी मांगी, हम तो अकेले में भी नहीं मांगते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे की श्रवण कीजिए और दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। अकाल मूरत अजूनी संभव अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल अजूनी संभव अजूनी संभव अकाल मूरत अजूनी संभव अकाल मूरत अजूनी संभव अकाल अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। अवतार, संत, महापुरुष या कोई आम आदमी जो भी शारीरिक तल से ऊपर उठ गया, शारीरिक तल से अजूनी को प्राप्त हो गया। शारीरिक तल से ऊपर उठना किसे कहते हैं? जिसने अपने मन को मार लिया, जिसने आत्मा को शरीर से जीते जी अलग कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद तो हर एक की अलग होनी है। जिसने जीते जी ये कार्य कर लिया कि शरीर से आत्मा को अलग कर लिया, फिर शरीर के दुखों से उसका कोई वास्ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको क्या लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कैसे अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं शहीदी देने के लिए, मुस्कुरा कर कि मेरे बच्चे शहीद होने जा रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को तैयार करता है शादी के लिए, मौत से शादी के लिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार करके। और जब जा रहे थे तो उनकी छाती को नाप रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई दया सिंह जी पूछते हैं, पाचा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं देख रहा हूँ कितने तीर सह लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? शारीरिक तल से ऊपर उठ गए। वो क्या उठे? वो तो खुद निरंकार धरती पर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पर हमें ज्ञान दिया एक कि ये अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, नीचे गरम ऊपर गरम। क्या लगता है? शरीर से आत्मा अलग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीते जी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, काट देता है, सब कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल एनेस्थीसिया लगाया होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेहोश हो जाता है, चाहे जितना मर्जी शरीर काट लो पता ही नहीं चलता। ये क्या करती है? सुन कर देती है शरीर को। नाम सिमरन बंदगी आत्मा को शरीर से जुदा कर देती है। जो कुछ होता है शरीर को होता है। महापुरुषों के शरीर दुखी भी हों वो मुस्कुराते हैं क्योंकि वो शरीर में होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समर्थ गुरु योनियों से परे ही नहीं है। समर्थ गुरु योनियों से परे ही नहीं है।
योनियों को काटने की ताकत भी रखता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसकी शरण में बैठे हैं, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में, समर्थ गुरु है, समर्थ गुरु सिर हथ तरियो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्व कला समर्थ है ये, राजा ने राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। ये है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बिहार से बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सारे बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब में विराजमान है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कथा है, डिटेल में दास यहाँ पे फिर शॉर्ट में लेगा, कि पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम बार बार आ रहा है, तो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा शब्द भी पढ़ लें, कि वो शब्द पढ़ते ही ना पता नहीं क्या हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने आके खड़े हो जाते जब भी दास वो शब्द पढ़ता है, ऐसा महसूस होता है, इतना रस है उस शब्द में। तो पहले ये कथा ले लें शॉर्ट में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, यहाँ पर बात यह चल रही है, हमें पहुंचना है अजूनी तक। पहुंचने के साधन क्या क्या है? एक तो संत बनना पड़ेगा, दूसरा अगर संत जल्दी बनना है तो गुरु की कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जन्मों के जन्म लग सकते हैं, गुरु कृपा दृष्टि कर दे एक जन्म में बना सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोनियां काटने की ताकत है उसकी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद मालवे के इलाके में ठहरे हैं। एक चौधरी आकर रोज अंतक सेवा करता है, खाना बना कर लाता है, दूध लेकर आता है, दिन रात सेवा करता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। इससे एक दो बार भूल भी हुई दास, क्योंकि शॉर्ट में ले रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद इसे दिया था, पर इसने खाया नहीं कि ऊंची कुल का हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना भागा, पर फिर वडभागा भी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में लगा हुआ है। तरस किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, इसने बेनती की, पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो, क्योंकि वहां देखता था सिख आते हैं अपूर्ण अवस्था में, कि जिनकी अवस्था इतनी ऊंची कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कितना मर्जी दुख हो, आनंद में रहते हैं, दुखों का कोई एक लक्षण भी उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास ऐसे सिखों को देखकर इसका मन किया कि मैं भी इस अवस्था को प्राप्त हूं। तो जब इसने सिखों से पूछा इस अवस्था को कहते क्या है, तो कहते जन्म मरण से रहित अजूनी अवस्था है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फिर से जोनियों में नहीं आना पड़ेगा, ये अवस्था मिल गई तो इसको बात बड़ी अच्छी लगी कि बोले भाव से कहता है, भोजन खिला रहा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, तो भोजन खिलाने के बाद कहता है, पातशाह एक बेनती। कहने लगे हाँ बोल चौधरी। इसका नाम है चौधरी शमीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मेरा ना जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद दे दिया। ये ले गया, रास्ते में कोई मिला इसका, कोई चाचा या मामा, कहने लगा अब तू इतना बड़ा चौधरी है, अब तू जूठा खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने वो शीत प्रसाद जमीन खोद के दबा दिया, अब भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी जब दूसरी बार सेवा करने आया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने जो तुझे दातें हमने दी थी तूने मालवे की धरती को दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछता रहा है कि भूल हो गई, जब सबने समझाया कि तूने कितनी बड़ी मूर्खता की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शीत प्रसाद तूने नहीं चखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज माफिया मांगता है, रोता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहता है जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोज ऐसे कहते हैं, समय आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई महीने हो गए इसे रोते तड़पते, क्योंकि गलती कर बैठा था, पर गुरु तो गुरु है, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन कहने लगे जाके सो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले के दीवान के बाद जब इसने भोजन खिलाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जाके आराम कर ले, सो जा। जब शाम को आया तो बड़ा ही दुखी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि पातशाह जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने काट तो दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तुझे आज दुखी दुखी क्यों है? कहने लगा जितना बुरा सपना है पातशाह, एक तो आपकी सेवा करके गया हूँ, आपके दर्शन करके, फिर इतना बुरा सपना।
वो भी ऐसा कि इतनी बार मैं कितने घरों में जन्म लिया है, लोग खुशियां मना रहे हैं, फिर मैं मर रहा हूँ, वहाँ पे लोग रो रहे हैं। मैंने इतनी बार देखा है आज कि थक गया है दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा समय तड़पता रहा हूँ, सपनों में जीता रहा हूँ, मरता रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने कहा था जन्म मरण काट दे, एक नींद में तेरा जन्म मरण काट दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सपने में ये साखी पढ़कर विचार करके मन में विचार आता है कि गुरु कितना समर्थ है। हम अपनी ताकत से चाहें कि अजूनी की अवस्था को प्राप्त हो जाए, लाखों जन्म 84 लाख क्या 84 करोड़ भुगत के भी शायद ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर गुरु तरस कर दे, लेख ही बदल देता है, जन्म मरण ही काट देता है, जन्मों के जन्म खत्म कर देता है और जोनी को प्राप्त करा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु इसलिए कहते हैं गुरु की प्रसन्नता लो। महापुरुषों ने दास को यही कहा था, संगत की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता है। संगत की प्रसन्नता ले ले, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सबके लिए है। कोई कार्य अटका हो, आपका काम ना हो रहा हो, ये गुरु नानक पातशाह के वचन भी है, बाबा नंद सिंह जी के वचन है कई बार, और ये बहुत लोगों ने आजमाया है। 101% कारगर तरीका है ये। आपका कोई कार्य ना हो रहा हो, कहते थे संगत को घर के चरण डलवाओ, जो अमृत लौटती हो, संगत नाम जपती हो, उनके चरण अपने घर में डलवाओ बेनती करके। एक सुखमनी साहब जी का पाठ करा लो सारे बैठकर मिलकर। कहते थे सारे कार्य रास हो जाते, 9 निधियां 18 सिद्धियां वहां पर आ जाती जहाँ संगत आ जाए, संगत की खुशी हो जाए। और डिटेल में समझाते थे बाबा नंद सिंह जी। कहते थे कईयों के घर होते हैं बड़े प्यारे, संगत कड़ा प्रसाद ले रही है, हाथ दीवारों पे लगा रही है, पर्दे गंदे हो रहे हैं, सामान खराब हो रहा है, उसके लिए उनको मन को होता है कि संगत सब खराब कर दिया। कहते थे मन में एक ग्लानि मत लाया करो, संगत जितना नुकसान करके जाएगी उतना भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत है, विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मिलकर कोई नाम जपते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, वो संगत हो जाती है। उसमें फिर ये मत देखो ये मेरा अपना है, ये पराया, ये दुश्मन है, ये मित्र है। एक तरह से सेवा करो श्रद्धा से उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसन्न हो जाए, अजूनी की अवस्था को पहुंचा देगा, फिर आना नहीं पड़ेगा दोबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजूनी मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वो घटना भी याद आ गई आज। राजन के राजा शब्द पढ़ना है ना, आइए पहले वो शब्द पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये छोटी सी घटना लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़
राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 छत्रतारी छत्रीपत छैल रूप छितना छत्रतारी छत्रीपत शैल रूप जितना छत्रतारी छत्रीपत छैल रूप छितना छत्रतारी छत्रीपत शैल रूप जितना छोड़ी कर छाया भर छत्रीपत गाये छोड़ी कर छाया पर छाया पर छत्रीपत गाये राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ ओ दूजा कौन ध्याये राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते स्वयं पव शुभम सर्वदा सर्व जुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विपूते कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चक्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते स्वयं पव शुभम सर्वदा सर्व जुगते चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विपूते कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजा
निकला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह शाह शान शाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बर्दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह खसम राजा काह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह आलमुल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह अबर रहमतवार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह तेगरा फत्ताह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह जानो दिलदारा गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक आए ना गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये।
पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए सुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करख करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम तुम वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने। कहूँ फूल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट संजाय निहारो ताके ताप तनक मोहर। और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व टोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले
राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होआ सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तू जिनको से नाम हटे लागे कहे नानक दस को आदित करे नरवाजे मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक महात विश्राम गाई गाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाजे धर्म हदूर कर्मी आपो अपने जिन नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जाना।
प्यार हमेशा बरसाना, फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक दिन में 100 बार गुरुजी करूँ तुम्हारा शुक्राना, फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, 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 मेरे घर भी आ जाना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।